Good morning, students. This is Mr. Suman Kumar Tiwari, Chemistry Faculty, Bokaro. My all chemistry lecture video are genuine and based on textbook only. This lecture video is based on some important MCQ question of competitive as well as board examinations. These questions are based on the naming of organic compounds by UPEC system. So please watch the video till end and like, subscribe and comment. You can drop your questions if you have in your minds. I will sure answer these questions. So out of these functional group you have to select one the principal functional group as the priority order. तो priority order के basis पे first हम लोग किसको select करेंगे? Aldehydes, ether and nitro. So for this doubt we have to learn the rules that cover the stability of the molecules and the priority order of the principal functional group. तो इस तीनों में किसका प्रिंसिपल ज़्यादा होगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, वो विल टेल मी. Aldehydes का, very good. So aldehyde will be given in priority number 1. तो aldehydes का priority 1 हो गया. Next it will be the 2, 3, 4, 5, 6. I have numbered 1 to 6 in the ring. Now you have to write the UPEC name. So options you have given in 4 options. You have to select the anyone which will be the suitable. So see the options. Option A is 4-methoxy 2-nitro benzaldehyde. Option B 4-formyl 3-nitro anisole. Option C 4-methoxy 6-nitro benzaldehydes. And option D 2-formyl 5-methoxy nitrobenzene. So which one will be the correct one? तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो कौन होना चाहिए? फर्स्ट में ही हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर पोजीशंस भी मिल रहा है. सो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही सही है. Because nitro and methoxy is the prefix which is written before the word root. So out of these two prefix which is come first alphabetically, M, because one start with M methoxy and second start with N nitro. So methoxy पहले M होगा तब N होगा alphabetically. So ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. पहले M होगा तो मिथॉक्सी. सो 4-methoxy 2-nitro benzaldehydes. UPEC name will be 4-methoxy 2-nitro benzaldehydes. So this will be the UPEC name. Video is coming or not? Now perhaps it is coming. So see the name will be 4-methoxy 2-nitro benzaldehydes. It will be the
UPEG name of the first questions. So without options we can write the UPEG name. No need to go through the options. But here in this examinations you will get the options of each questions, because altogether 50 questions having half marks of each, and you will awarded total 25 marks. Clear? So out of these 50 questions, all are compulsory. No internal choice is provided. So you have to solve all the questions, and also similarly no negative questions. कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सब में हाफ मार्क्स का तो टिक करना है बस. बट यू हैव टू मेंटेन द टाइम बाउंड्री, because out of these 50 questions you have to solve within 50 minutes or 55 minutes, because 1 hour is the time limit. 1 hour के before तुमको सबमिट भी करना है. So clear? You have to solve these questions as soon as possible, and then you have to check once again, is it true or false or any problems. Clear? So I will write the second name of second compound. So see, this is cyclic ring that contains acid functional group and alkyl groups. What will be the name of these compounds? Try to solve. Cyclopentanoic acid. Very good. हाँ, हम लोग पेंटेन साइक्लो कार्बोक्सिलिक भी लगा सकते हैं, पेंटेनिक लगा सकते हैं, बिकॉज साइक्लो है तो हम लोग कार्बोक्सिलिक ज़्यादा प्रीफर करते हैं. सो इट विल बी 2 मिथाइल cyclopentane carboxylic acids, because in cyclic compound we should write carboxylic acids, not only oic acids. So cyclopentanoic acids में भी मार्क्स दिया जा सकता है, but it will be actually carboxylic acids. Next one, 3. तीसरा का क्या नाम होगा? सिक्स मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक है तो प्रीफिक्स साइक्लो लगाना ही पड़ेगा, और दो फंक्शनल ग्रुप है. वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सेकंड इज कार्बोनिल, दैट इज कॉल्ड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो नेम क्या होगा? रॉन्ग वन, थोड़ा सा मिस्टेक है, a very little mistake here. Try to solve once again. थोड़ा सा गलती है, उसको इम्प्रूव करना होगा. So this functional group is the lower functional group and this is the principal functional group. तो principal functional group को ध्यान में रख करके इसको हम लोग प्रीफिक्स बना देंगे. प्रीफिक्स में इसका नाम होता है ऑक्सो. ऑक्सो. So 1 2 3 4 for oxo. So for oxo cyclohexane carboxylic acids, it will be the correct name. Next question number 4. ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, डिफिकल्ट है और एक्सेप्शंस है. So try to solve these types of questions. This is something different one. ये थोड़ा different questions है. क्या होगा? Try to solve. इस क्वेश्चंस एग्जाम में आने से डाउट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ एक्स्ट्रा डाउट सेशन. इट इज नॉट क्लास, इट इज डाउट क्लास ओनली.
से भी नहीं मिला। आशुतोष कुमार, आजाद, सत्यप्रिया, ऋषिका, these students always answer, that's why I named this. What will be the UPEG name? Mr. Ashutosh Kumar. So see here, for this naming you have to select the principal function. So here there are 3 principal functions. You can check, इसका priority ज़्यादा हो सकता है तीनों में से तीनों का, because all the 3 have same function group, that is COOH carboxylic acids function group. So these carboxylic acids will not be given in the naming systems. तो naming system में इसको हम लोग naming में पोजीशन नहीं दिया जाएगा. So it will be the carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. So it is propane derivatives compounds. Propanes का ये derivatives है. So see, all the 3 carboxylic acids will be given the name of carboxylic acids as the suffix tri with the position altogether the number with tricarboxylic acids. But before that we have to select the word root. So tricarboxylic acid, very good, this will be the correct name. So it will be 1,2 dichloro. 1,2 पर क्लोरो है तो क्लोरो तो प्रीफिक्स होगा. वेरी गुड अटेम्प्ट. सो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, बिकॉज 1, 2, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन वर्ड रूट होगा ही. सो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स. क्लियर. सो इस तरह के कंपाउंड्स को स्पेशल नेमिंग करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 यदि लगा देंगे तो पहला मिस्टेक नहीं होगी. सो इट इज नॉट पेंटेन डेरिवेटिव्स बट इट इज मेड इन प्रोपेन डेरिवेटिव्स लेंगे. सो माइंड दिस फंक्शन ग्रुप कार्बन इज नॉट काउंटेड. तो जहां भी 3 सक्सेसिव या 2 सक्सेसिव फंक्शन ग्रुप रहेगा और उसमें कार्बन है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. इसके बगल वाला दैट इज कॉल्ड अल्फा. सो अल्फा से 1, 2, 3 हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ भी ये एक्सेप्शन. एंड द लास्ट वन, सी आई हैव गिवन द मिक्स्ड वन, बॉन्ड लाइन एज वेल एज द स्ट्रक्चर. तो लास्ट वाला जो है उसका स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जैसे ब्रोमीन है, H है, CH3 है, ठीक है. बट हर जगह पर हम कार्बन पोजीशन नहीं दिए, हाइड्रोजन नहीं दिए. तो अब सेलेक्ट करना होगा क्या इसका यूपेक नेम है, क्या वर्ड टू टेक फर्स्ट. तो टेल मी द यूपेक नेम ऑफ दिस बॉन्ड लाइन मिक्स्ड फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन भी है और स्ट्रक्चर्स भी है. तो अब इसका क्या नेमिंग होगा. Try to solve first. Select the functional group. So here no functional group, only double bond is present and one bromo is present. Then select numbering 1, 2, 3, 4, 5 as the number of carbons you can select in this bond line, and then prefix and suffix and write the final UPEG name. So tell me the answer of this bond line.
as the positions of double bond will be the lowest position. So see, this will be the carbon number 1, this is carbon number 2, 3, 4 and 5. So it is pentene derivatives. Actually this is a pentene that contains further branch of bromo and one more carbon here. So this point is carbon, that means it is methyl. Like this point is carbon, this point is carbon, this point is carbon, also this point is carbon. So alphabetically we will take the bromo first in priority. So it will be 4 bromo, then 3 methyl pentene. तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें इतना टाइम टेकन. So it will be the 4 bromo 3 methyl pentene, not pent2ene, because the position of double bond is on 2. So pent2ene, 4 bromo 3 methyl pent2ene. Next one. So I will move my camera to this screen. So see, right hand sides I have written the question. 10 covalent bonds in a Lewis dot structures of propane will account for how many valence electron? So how many valence electron of propane that contain 10 valence electron? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 10 कोवलेंट बॉन्ड दिया हुआ है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ये पूछा हुआ है प्रोपेन में. सो विल टेल मी द आंसर मींस इन प्रो. So this is the structural formula of propane. कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? And options we have given 10, 20, 12, 14. So ऑप्शन देख करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शंस भी इसको सॉल्व किया जा सकता है. बहुत इजी क्वेश्चंस. What will be the correct one? 10, 20, 12 or 14? Tell me the answer by watching this structure. Structures को देखो और बताओ कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें. रिप्लाई फास्ट. सिंपल है, काउंट करना है, कुछ भी नहीं करना है. यहाँ कोई डिफिकल्ट थिंग्स नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल वन, बट विदाउट प्रैक्टिस इट विल बी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन. क्या होगा आंसर? Reply anybody. नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है? once again I will repeat it. बोल रहा है 10 valence bonds, sorry 10 covalent bonds in a Lewis dot structure. कोई भी Lewis dot structure से तो वहाँ 10 covalent bond है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 bond हम बना दिए. क्वेश्चन से राइज कर रहा है how many valence electrons, कितना valence electrons होगा. तो सिंपल, जितना बॉन्ड है उसका डबल. एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा?
प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है C3H3 + 2 मतलब 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। So out of these 4 valence electrons will participate in bonding. Similarly, hydrogen is monovalent, so it will be 1 valence electron. So 4 into 3 हो जाएगा 12। कार्बन के लिए हो जाएगा 4 valence electrons per carbon, so 3 carbon here, that means 12 electrons, and 8 hydrogen 1 electron, so that is 8. So 12 plus 8 equal to 20. ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो प्रोसेस इजी लगे वो प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट विल बी समथिंग डिफरेंट बट इजी वन। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जैसे एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चंस है। तो 50 क्वेश्चंस में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाफ मार्क्स इच क्वेश्चंस है और थोड़ा फास्ट करना है। सो यू नीड मोर प्रैक्टिस अप टू यूपेक नेमिंग। तो यूपेक नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग किए हैं। 1 सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो सपोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन, इफ वी हैव आस्क्ड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम्स, तो ईच कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग वीवीटी पढ़े, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलता है कि ओनली अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। ईच सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड and redistribute its energy to forms new set of orbitals having identical shape and equivalent energy. These orbitals are called hybrid orbitals। और यदि हम लोग सिंपल शॉर्टकट्स में निकालते हैं तो बीबीटी में एक टेबल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 हो तो नो हाइब्रिडाइजेशन 0। इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2 sp, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3 sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगा। इफ टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स इट इज sp3। तो ईच कार्बन यू कैन सी इज बॉन्डेड विथ 4 single covalent bonds, and you know single bond is sigma bonds which formed by the end to end overlapping of atomic orbitals। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल जब end to end overlapping करेगा तो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड सिग्मा बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड्स। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, तो सब का हो जाएगा sp। अब sp3 का परसेंटेज s करेक्टर पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज s करेक्टर्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो परसेंटेज मतलब होता है 100, एंड हियर यू कैन सी 1s and 3, तो हो जाएगा 25% ईच। तो 25% मतलब वेरी वेरी लेस, सो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका काफी कम होगा, लेकिन जिसका sp होगा 50% s करेक्टर होगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगा, दैट मींस दे विल बी इन एसिडिक इन नेचर। तो वो s करेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इस साइड्स वाले कुछ मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट में जो कार्बन है जिसमें हम यहाँ पॉइंट डाल रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन वी हैव टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कोई भी एसिड से हम लोग को पता होता है, वेरी गुड, sp2 होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड्स। तो ये एसिड्स का स्ट्रक्चर्स होता है और इसी स्ट्रक्चर्स में हम लोग आसानी के साथ देख सकते हैं, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ रहा है तो एसिड्स RCOOH is called carboxylic acid, but we can see the structures trigonal planar। ये OH है, ये डबल बॉन्ड O है, ये R है। तो you told that it has sp2 hybridization। तो कैसे sp2 हम लोग आसानी से चेक
एक, दो और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का sp2 होता है। वेरी गुड। सो एक यहाँ पाई बॉन्ड है, इसलिए हम लोग 4 बॉन्ड्स को यहाँ sp3 नहीं ले सकते हैं, 3 बॉन्ड्स का ही लेना पड़ेगा। सिमिलरली व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस पोजीशन नंबर 3 कार्बन? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? पोजीशन नंबर 3 in question number 5. So what is the hybridization of this carbon? sp3 is wrong, sp2 होगा because एक डबल बॉन्ड है। sp2 होगा कि 1 2 3 सिग्मा है, so its hybridization is sp2। अब सपोज एक क्वेश्चन दे रहा है which is more acidic, C2H2 and C2H4 and C2H6। सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम एसिडिक कौन है? इथीन, इथेन। टेल मी द आंसर। C2H2 more acidic because it has hybridization is sp, it has sp2, it is sp3। तो सिंपल है, sp मतलब 50% यहाँ हो गया इस कैरेक्टर, मतलब मोर नहीं, इसको हम मोस्ट बोल सकते हैं, मोस्ट एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरह का क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो some more questions. See if you have a bond is made up of a large number of organic compounds, then this bond is treated as options दिया हुआ है ionic, metallic, covalent, dipolar। कौन सा बॉन्ड होगा? बोल रहा है if a bond is made up of large number of organic compounds, large number of organic compounds का बना हुआ बॉन्ड है, what will be the bonds? ionic, metallic, covalent, dipolar। क्लास 10 का क्वेश्चन है। बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन हम बुक से दे। अब आ रहा है? ठीक है। हाँ, so see the question once again, I repeat, if a bond is made up of large number of organic compounds, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, देन द बॉन्ड इज टर्म्ड एज आयोनिक कोवलेंट होगा, क्योंकि आयोनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन मोर टिपिकल क्वेश्चंस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड इज लेस देन 10, मोर देन 10, 0.32, 1.7 और ओवर 1.7। तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा? आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है? यदि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा? तो जनरली जीरो तो नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन्स का कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। और यू नो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैविंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स का 3, 3.5 और 4 होता है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ कार्बन एंड कंपाउंड्स का एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन मोस्टली यूज्ड है। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस, दैट इज 0.03 to 1.7। तो बहुत ही कम होता है।
यदि आयनिक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CF4? CF4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल क्वेश्चन। ये CF4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? So it is organic chemistry called tetrafluoromethane. मीथेन का फ्लोरीन डेरिवेटिव से, so it will be 4 बॉन्ड है CF4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, तो sp3 होगा। ठीक है, so I think time is over. Let's take for attendance. तो इस तरह का क्वेश्चंस ही रहेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के लिए हम इसको करा दिए। और if you have any questions, doubts, you